अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या क्या कर चुके हैं। वी हैव आल्सो डिस्कस सिलेबस टॉपिक्स क्या क्या इस चैप्टर्स में वी हैव टू स्टडी सो फार। सो just a quick revision के whatever the stuff we are going to study and what are the thing we have already covered. तो लास्ट लेक्चर्स में मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू बताया था एंड लास्ट लेक्चर वी हैव आल्सो स्टडीड द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हाउ एडिशन ऑफ टू नंबर कैन बी डन using a C programming, and similar program can be created using your C++ program. If you remember in the previous lecture that instead of printf we have made use of cout, and instead of scanf we have made use of scene, and the outputs remain the same for both the programs. If you see, instead here printf is used, and instead that we have used cout, because in C++ we are making use of iostream.h program and header file, and because of that reason we are making use of cout. And similarly, for instead of scanf we are making use of scene to take input and cout for take output. And another feature we have also seen in the previous lecture was along with slash n, and slash n was used to leave line in output screen, and that is console screen. Similarly, in andel can be used. Okay, so today's lecture we are going to study the new concept. This C++ also we have studied in the previous in C out portions also we have seen so far in the previous lectures. So this was just a quick revision of what we have done so far. This operator is known as insertion operator and extraction operator. Insertion operator is used along with cout, and insertion of extraction operator is used along with scene. So today what we are going to study in this lecture is we are going to understand the concept of class and object. Okay, so what are the concept of class and object? So before starting that, header file, which header file is going to we are going to make use of? The first header file which we are going to make use of is stdio dot as iostream.h, not stdio.h, because stdio.h was used for the function printf and scanf in your C programming. Here in C++ we are making use of iostream.h. We are going to going to create a class named student. In that class we are see this red rectangle here which you are seeing is which you are seeing is somewhat different with this cut rectangle here. So what I'm doing here is marking it as a private, and inside this private here we are going to make use of declare variable integer roll number. This roll number, whatever the variable or function we are going to declare in this region within this red box will be private variables. Okay, and here in the green box whatever we are going to write, that particular values will be public variable. So here void display is here your public function. Okay, so since here outside this class we are making use of main function. If you remember, in all the previous programming languages and even in future, all the programming languages start executing the program from main functions. Okay, so here the student what you see is actually the student of a class. So okay, so this the student is nothing but a class. What here the S is considered to be an object. For example, suppose you student are from CO3IB class of first shift second year, and CO3IA class for first shift second year, and CO3IB from second shift. So CO3IA is nothing but the class. Okay, and each and every student in that particular class is known as object. So similarly, here the student is known as class, and with that student we are making use of an object. So we have created an object name as f. तो ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं. What you can make create an object of any name and word so long the first letter is an alphabet. Okay, so with that object an access operator, this dot is known as access operator. With the help of this access operator you can make use of display function.
So since the display function is outside the class, if you see this display function is outside the class, okay, so this display function is publicly defined here. The access specifier mentioned to this display function is public. That is the reason I can make use of this publicly defined void display outside the class. What I am doing here inside void display, I am making use of a private variable. ठीक है, indirectly I can make use of private variable through public void display function. तो एक एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल आपके बिल्डिंग में पानी का टाकी है, जो पानी का टाकी आपके घर में आता है। अज्यूम करते हैं कि बिल्डिंग में आपके बहुत सारा पानी, बहुत सारे फ्लैट्स है, 10 फ्लैट अज्यूम करते हैं। तो 10 में से सभी फ्लैट्स में अपने अपने फ्लैट में एक 1000 लीटर का वाटर टैंक होगा, और उसको जो पानी आता है वो बिल्डिंग के टॉप टेरेस पे एक टाकी होती है जो पूरी बिल्डिंग के को वाटर देती है। ठीक है, तो जो घर के वाटर टैंक है, वो घर का वाटर टैंक क्या रहेगा आपका, वो वाटर टैंक का पानी आपके घर वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका नेबर यूज़ नहीं कर सकता। नेबर के लिए अपना खुद का वाटर टैंक अवेलेबल है। मगर सभी लोगों को पानी कहाँ से आ रहा है, बिल्डिंग के टेरेस पे जो पब्लिकली अवेलेबल वाटर टैंक है वहाँ से। मगर ऐसे ही सिटी के अंदर जो सभी बिल्डिंग है, उनको जो वाटर टैंक में पानी कहाँ से आ रहा है, डैम से। तो डैम इज समथिंग लाइक योर पब्लिक, पब्लिक जो सभी को डेटा देता है। और प्राइवेट इज समथिंग लाइक योर, जो घर के अंदर का, जो फ्लैट के अंदर का वाटर टैंक है, वो जो सिर्फ फैमिली मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। ठीक है, अब बिल्डिंग के अंदर, बिल्डिंग के टॉप टेरेस पे जो वाटर टैंक रखा है वो क्या है, दैट पर्टिकुलर वाटर टैंक इज एक्चुअली, दैट पर्टिकुलर वाटर टैंक इज एक्चुअली प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्यों, बिल्डिंग के टेरेस पे वो वाटर टैंक रखा हुआ है, वो वाटर टैंक सिर्फ उस बिल्डिंग के लोगों को ही मिलेगा, मीन्स उस बिल्डिंग के फ्लैट्स को ही मिलेगा, बाजू वाले बिल्डिंग में नहीं मिलेगा, बाजू वाले बिल्डिंग में नहीं मिलेगा। तो वैसे टाइप के डेटा को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टेड। ठीक है, प्राइवेट क्या रहेगा, घर का टाकी का पानी। ठीक है, और पब्लिकली अवेलेबल कौन सा पानी रहता है, डैम का। वैसे ही ये जो मेन फंक्शन आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेन फंक्शन बाहर का है, इस क्लास का नहीं है। तो इसको डिस्प्ले फंक्शन एक्सेस करना है, तो डिस्प्ले फंक्शन आपने क्या लिखा है, पब्लिक, इसलिए आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। मगर ये मेन फंक्शन के अंदर से आप प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस करना है तो इनडायरेक्टली कर सकते हैं, डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं सी प्लस प्लस में। आयोस्ट्रीम डॉट एच, कोनियो डॉट एच हम लोग डिफाइन किए। तो ये मेरा जो स्टूडेंट नाम का मैंने जो प्रोग्राम क्लास बनाया हूँ, क्लास मेरा कीवर्ड है। इसके अंदर प्राइवेटली मैं दो वेरिएबल ले रहा हूँ, एक रोल नंबर और एक नेम। नेम एरे है कैरेक्टर टाइप का, जो इसमें समझो एरे क्यों लिया हूँ, बिकॉज एक नाम में 4 अल्फ़ाबेट आएगा। फॉर एग्जांपल अब्दुल नाम का, किसी का अब्दुल नाम है, तो अब्दुल में 5 कैरेक्टर हो गए, तो वो 5 अल्फ़ाबेट आएंगे, इसलिए 10 डिजिट अल्फ़ाबेट लिया है। रोल नंबर मेरा इंटीजर टाइप का लिया हूँ। तो ये मेरे सब दोनों मेरे क्या बन जाते हैं, मेंबर वेरिएबल, एंड दिस बिकम माई, एंड बोथ ऑफ देम आर प्राइवेट। दोनों रोल नंबर एंड नेम मेरा क्या बन गया, प्राइवेट वेरिएबल। सिमिलरली अब मैं पब्लिकली डिफाइंड फंक्शंस बनाने वाला हूँ। तो मेरा पहला फंक्शन रहेगा वर्ड एक्सेप्ट, जो कि मेंबर फंक्शन रहेगा। मेंबर फंक्शन में मैं यूजर को बोलूंगा कि एंटर रोल नंबर, तो यूजर रोल नंबर एंटर करो। तो ये जो स्क्रीन में खाली इन्वर्टेड कॉमा में जो दिख रहा है ना, वो स्क्रीन में लिख कर आएगा। फिर आप सीन के थ्रू, सॉरी, सीन के थ्रू रोल नंबर इनपुट देंगे। वैसे ही सी आउट के थ्रू दो बार स्पेस लाइन दे छोड़कर एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट लिख कर आएगा आउटपुट स्क्रीन पे। फिर आप इनपुट में नेम के थ्रू नेम डालेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ रोल नंबर में 12 डाला और नेम में अली करीम डाला, तो वो डेटा इसके अंदर स्टोर हो जाता है। अब जो इनपुट लिया उसको आउटपुट में देख लेते हैं। तो डिस्प्ले आउटपुट के लिए मैंने अलग फंक्शन बना लिया, तो इसको भी हम लोग मेंबर फंक्शन बोलेंगे। तो अब इसके अंदर मैं सी आउट लिख देता हूँ, एंटर, सॉरी, रोल नंबर इज रोल। तो रोल के अंदर मैंने यहाँ क्या डाला था, 12, वो 12 कहाँ है, इसके अंदर है, तो वो मेरा रोल नंबर 12 यहाँ पे आ जाएगा। और सी आउट में नेम इज नेम, नेम में क्या डाला था, यहाँ पे मैंने एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट में यहाँ पे क्या लिखा था, अली करीम। तो वो अली करीम इस एरे के अंदर स्टोर्ड है, तो वो यहाँ पे अली करीम लिख कर आ जाएगा। तो यहाँ मेरा क्लास
फंक्शन क्लोज हुआ, यहाँ मेरा क्लास क्लोज हुआ। तो आप नोटिस करो जब भी हम क्लास स्टार्ट किए थे यहाँ से क्लास मेरा यहाँ क्लोज हो रहा है सेमी कोलन से। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिक्लेयर अ क्लास। क्लास कंटेन सर्टन प्राइवेट एंड पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, और उसके अंदर वी हैव मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन। अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि यहाँ प्राइवेट में सिर्फ मेंबर वेरिएबल्स है और पब्लिक में सिर्फ मेंबर फंक्शंस है, दो मेंबर फंक्शंस है, बराबर। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपसे जैसा मैंने लिखा वैसा ही, ये एज पर द रिक्वायरमेंट है। प्राइवेट के अंदर मेंबर वेरिएबल मेंबर फंक्शन दोनों लिख सकते हैं, पब्लिक के अंदर भी मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन दोनों लिख सकते हैं। अब मैं एक मेन फंक्शन बना रहा हूँ ताकि मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, सो दैट आई कैन रन माई प्रोग्राम एंड सी द आउटपुट। तो मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ। what I have done here, I have initialized the class student। तो student मैंने यहाँ डिक्लेयर किया हूँ और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूँ। तो द मोमेंट यू राइट लाइक दिस और सेमीकोलन देते हो तो क्लास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट एस बन गया। तो मेरा ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, एस। तो ज़रूरी नहीं है कि वी कैन एक कोई अल्फ़ाबेट ही ऑब्जेक्ट का नाम हो, ये वर्ड भी हो सकता है एज लॉन्ग एज दोज अल्फ़ाबेट्स आर कनेक्टेड, चिपके हुए वर्ड हो अलग अलग वर्ड ना हो। अलग अलग वर्ड हो गए तो दो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। तो यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट भी ऑब्जेक्ट बन सकता है, एक सिंगल वर्ड भी ऑब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। तो ये मेरा एस ऑब्जेक्ट के थ्रू और सी एल आर एस टी आर ये बाय मिस्टेक आया है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द कोड। और फिर एस डॉट एक्सेप्ट ने क्या किया, ये वाले फंक्शन को कॉल किया। दिस द मोमेंट यू कॉल दिस फंक्शन, आपको याद है अगर मैं इतना सा हाइड कर दूँ, एस डॉट हाइड कर दूँ तो क्या दिख रहा है आपको, एक्सेप्ट और ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमीकोलन। तो एक्सेप्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमीकोलन दिख रहा है। तो इतने पार्ट को सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉल। तो व्हाट वी हैव डन नाउ इज वी हैव कॉल्ड अ फंक्शन। तो यहाँ फंक्शन कॉल हुआ, द मोमेंट द फंक्शन वाज कॉल्ड, तो आउटपुट स्क्रीन में एंटर द रोल नंबर लिख कर आएगा, फिर आप रोल नंबर 12 डालोगे, फिर दो लाइन छोड़ के एंटर द नेम लिख कर आएगा तो नेम डालोगे, ठीक है। फिर सिमिलरली आप एस डॉट डिस्प्ले फंक्शन करोगे तो डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, फिर जो भी आपने यहाँ इनपुट में रोल और नेम के अंदर डाला था तो वो इधर पे आ जाएगा। तो रोल नंबर इज 12, नेम इज नेम। तो ये एस क्या हुआ, ऑब्जेक्ट किसका, स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट क्लास का वो ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। तो डॉट क्या हुआ मेरा, ऑपरेटर, एक्सेस ऑपरेटर। इस डॉट को क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑपरेटर। क्या बोलेंगे, एक्सेस ऑपरेटर। तो डॉट जो मेरा एक्सेस ऑपरेटर है, तो एस ऑब्जेक्ट इस एक्सेस ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस फंक्शन को यूज कर रहा है आपके क्लास के बाहर से, आपके क्लास के बाहर से। द रीजन बिकॉज यू हैव रिटर्न इट पब्लिक, दैट इज वाई यू आर मेकिंग यूज ऑफ इट आउटसाइड द क्लास। वैसे ही डिस्प्ले फंक्शन आप बाहर से यूज कर रहे हो, ठीक है। फिर गेट सी एच क्लोज किया। अभी आउटपुट देखते हैं, मैं आउटपुट जो स्क्रीन पे अभी दिखाने वाला हूँ वो टर्बो सी वाला आउटपुट रहेगा। तो आउटपुट इस तरीके से आता, देखो एंटर द रोल नंबर, एक्सेप्ट वाला फंक्शन जब कॉल हुआ तो तुरंत फंक्शन के अंदर ये रन होगा, एंटर द रोल नंबर, फिर आपको 12 आया, फिर आपको लिखा आता है एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट। उससे पहले दो लाइन है तो ये एक लाइन स्लैश एन, दूसरी लाइन वाला स्लैश एन यहाँ पे। तो ठीक है, एक लाइन यहाँ से मैं यहाँ आया, एक लाइन छोड़ के फिर यहाँ से मैं यहाँ आया, ठीक है। तो इसलिए दो बार स्लैश एन है। अब इसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, नेम अली करीम लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं ये मेरा दोनों लाइन इनपुट का था, वैसे जैसे ये हो गया रिटर्न चला जाएगा एस डॉट एक्सेप्ट के पास, फिर नीचे जाएगा एस डॉट डिस्प्ले फंक्शन पे। जैसे द मोमेंट एस डॉट डिस्प्ले फंक्शन पे जाता है तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे दो लाइन है, रोल नंबर इस, देखो यहाँ पे भी स्लैश एन छोड़ा है, तो यहाँ पे एक्चुअली दो स्लैश एन आना चाहिए अगेन, क्योंकि यहाँ दो लाइन छुट्टी हुई है। तो दो रोल नंबर इज रोल, तो यहाँ पे 12 आएगा एंड नेम इज अली करीम, ठीक है। दिस इज हाउ योर प्रोग्राम लुक लाइक। तो ये मेरा सिंपल सा सी प्रोग्राम वाला सी प्लस प्लस का प्रोग्राम था, वी हैव मेड यूज ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट होता है, सिर्फ इतना सा ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को एक्सेस किया हम लोग ने, और इतना बड़ा ये मेरा क्लास है, ठीक है। सो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम को अगर एकदम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हेडर पहले, सबसे पहले हेडर फाइल आएगी, उसके बाद आप क्लास डिक्लेयर करोगे, फिर मेंबर फंक्शन मेंबर वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे एंड मेन फंक्शन लास्टली आप डिक्लेयर करोगे। तो जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हूँ थियरी में अभी दिया था वही पूरा थ्योरेटिकली यहाँ लिखा है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू 4 मार्क्स के लिए आपको ऐसा लिखना है, ठीक है। सिंटैक्स क्या होगा, क्लास इज अ वे ऑफ बाइंडिंग डेटा एंड एसोसिएटेड फंक्शन टुगेदर। तो डेफिनेशन क्या है, क्लास इज अ वे ऑफ बाइंडिंग डेटा। बाइंडिंग डेटा कैसे, सभी क्लास के अंदर सभी डेटा को बाइंड एक जगह पे रखा गया है, वेरिएबल्स हो फंक्शन हो, एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शन, तो फंक्शन को भी रखा गया है, तो इसी वजह से इसको क्लास बोलते हैं। सिंटैक्स देखेंगे आप, क्लास, क्लास का नाम लिखे, जैसे मैंने स्टूडेंट लिखा था
प्राइवेट के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, पब्लिक के अंदर भी आप अगर फंक्शन वेरिएबल से उसको डिक्लेयर करेंगे, क्लास क्लोज करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना कि सेमी कोलन आता है क्लास के क्लोज होने के बाद। ठीक है, तो मैंने ये जो अभी आज का सेशन कराया हूँ थोड़ा सा मैंने क्विकली कराया एक्चुअली। लेक्चर जो वीडियो लेक्चर जो था वो उसमें मेरे को ऑडियो दिख रहा था, वीडियो नहीं दिख रहा था। दैट इज़ द रीज़न कि मैंने ये फिर से रिकॉर्डिंग करके आपको अपलोड कर रहा हूँ। तो आप ये वीडियो देखिए इसको। और ये छोटा सा वीडियो है, आज के लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया था, 40 कुछ 1 आवर का था। रीज़न उसका एक्सटेंड हुआ था क्योंकि वो उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन भी थे।